के साथ दिखाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम धन्यवाद देते राजा इस अच्छे सुंदर शाम के समय प्रभु रात के समय अपेक्षा माने की सहायता अनुग्रह दिया कोटि कोटि लाखों धन्यवाद देते राजा जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठा होकर वो जो मुझे पुकारेगा मैं उसके बीच में रहूंगा कहा परमेश्वर पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में मंडला रहा है धन्यवाद करते राजा स्तुति प्रभु धन्यवाद देते राजा आराधना करने की सहायता किया प्रभु राजा धन्यवाद देते राजा स्तुति प्रभु वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें किया प्रभु राजा रोज दाऊद के समान प्रभु राजा कुछ भी संकट के समय में प्रभु वो आपके ऊपर भरोसे में रहकर राजा वो आपके वचन के ऊपर प्रभु चलने के लिए उसने अनुग्रह प्रभु राजा उसने निर्णय लेकर प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए सहायता किया प्रभु वैसे हमें भी प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखकर राजा आगे बढ़ने के लिए राजा हर दिन हम आगे बढ़ने के अनुग्रह सहायता मदद कीजिए राजा हम प्रार्थना करते राजा विशेष करके राजा कल के होने वाला आराधना के हम प्रार्थना करते राजा आज सारे जगह पे भी जितने जिधर कलीसिया विश्व भर में पहले सामुएल 28 अध्याय இஸ்ரவேலின் மேல் யுத்தம் பண்ண தங்கள் சேனைகளை போருக்கு கூட்டினார்கள். அப்பொழுது ஆகீஸ் தாவீதை நோக்கி நீயும் உன் மனிதரும் எவ்விதத்திலும் என்னோட கூட யுத்தத்துக்கு வர வேண்டும் என்று அறியப்படவாய் என்றார். தாவீது ஆகீஸை பார்த்து உன்னுடைய அடியான் செய்ய போகிறதை நீர் நிச்சயமாய் அறிந்து கொள்வீர் என்றார். அப்பொழுது ஆகீஸ் தாவீதை நோக்கி இதற்காக உன்னை என்னாலும் எனக்கு மெய்க்காவலனாக வைப்பேன் என்றார். சாமுவேல் இதற்கு முன்னே இன்னமே இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் அவனுக்கு துக்கம் கொண்டாடி அவன் ஊராகிய ராமாவிலே அவனை அடக்கம் பண்ணினார்கள். சவுல் அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களையும் பொய் சொல்லுகிறவர்களையும் தேசத்துக்கு இராதபடிக்கு துரத்திவிட்டான். பெலிஸ்தர் கூடி வந்து சூனேமிலே பாலை இறங்கினார்கள். சவுலும் இஸ்ரவேலர் எல்லாரையும் கூட்டினார். அவர்கள் கில்போவிலே பாலை இறங்கினார்கள். சவுல் பெலிஸ்தரின் பாளையத்தை கண்டபோது பயந்தான். அவன் இருதயம் மிகவும் தத்தெடுத்துக் கொண்டிருந்தது. சவுல் கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கும் போது கர்த்தர் அவனுக்கு சொப்பனங்களினாலாகவும் கூர்வினாலாகவும் தீர்க்க தரிசனங்களாகவும் மறுபடியும் வரவில்லை. அப்பொழுது சவுல் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி அஞ்சனம் பார்க்கிற ஒரு ஸ்திரீயை தேடுங்கள், நான் அவரிடத்தில் போய் விசாரிப்பேன் என்றார். அதற்கு அவனுடைய ஊழியக்காரன் இதோ எந்தோரில் அஞ்சனம் பார்க்கிற ஒரு ஸ்திரீ இருக்கிறார் என்றார். அப்பொழுது சவுல் வேஷம் மாறி வேல் வஸ்திரம் தரித்து கொண்டு அவனும் அவனுடைய கூட 2 பேரும் ராத்திரியிலே அந்த ஸ்திரீனிடத்தில் போய் சேர்ந்தார்கள். அவளை அவன் நோக்கி நீ அஞ்சனம் பார்த்து எனக்கு குறி சொல்லி நான் உன்னிடத்தில் சொல்லுகிறவனை எழுப்பி வரச் செய் என்றார். அதற்கு அந்த ஸ்திரீ சவுல் அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களையும் குறி சொல்கிறவர்களையும் தேசத்தில் இராதபடிக்கு நிர்மலமாக்கின செய்தியை நீர் அறிவீரோ? என்னை கொன்று கொடுப்படி நீர் என் பிராணனுக்கு கண்ணி வைக்கிறது என்ன என்றார். அப்பொழுது சவுல் இந்த காரியத்திற்காக உனக்கு பொல்லாப்பு வராது என்பதை கர்த்தரின் ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்று அவளுக்கு கர்த்தர் மேல் ஆணையிட்டார். அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ உமக்கு நான் யாரை எழும்பி வர பண்ண வேண்டும் என்றதற்கு அவன் சாமுவேலை எழும்பி வர பண்ண வேண்டும் என்றான். அந்த ஸ்திரீ சாமுவேலை கண்ட மாத்திரத்திலே மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சவுலை நோக்கி ஏன் என்னை மோசம் போக்கினீர், நீர்தான் சவுலாட்சிதே என்றார். ராஜா அவளை பார்த்து நீ பயப்படாதே, நீ காண்கிறது என்ன என்று கேட்டான். அதற்கு அந்த ஸ்திரீ தேவர்கள் பூமிக்குள் இருந்து ஏறி வருகிறதை காண்கிறேன் என்று சவுலுக்கு சொன்னாள். அவளுடைய ரூபம் என்ன என்று அவளை கேட்டான். அதற்கு அவள் சால்வையை போர்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு முதிர்ந்த வயதான மனுஷன் எழுப்பி வருகிறான் என்றான். அதனாலே சவுல் அவன் சாமுவேல் என்று அறிந்து கொண்டு தரை மட்டும் முகங்குனிந்து வணங்கினான். சாமுவேல் சவுலை நோக்கி நீ என்னை எழும்பி வர பண்ணி என்னை கலைத்தது என்ன என்று கேட்டான். அதற்கு சவுல் நான் மிகவும் நெருக்கப்பட்டிருக்கிறேன், பெலிஸ்தர் எனக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணுகிறார்கள், தேவனும் என்னை கைவிட்டார், அவர் தீர்க்கதரிசனங்களாவது சொப்பனங்களாவது எனக்கு மறு உத்தரவு அருள்வதில்லை, ஆகையால் நான் செய்ய வேண்டியதை நீர் எனக்கு அறிவிக்கும்படி உம்மை அழைப்பித்தேன் என்றார். जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरे शत्रु बन गया तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसे मुझसे फैला था वैसे ही उसने व्यवहार किया है और तो उसने तेरे आप से तुम्हारा अड़ियान
आपका आपके गुलाम जो करने वाला है, हाँ, आप सचमुच जानता है। वो सामने वाला गुंडा क्या बोलता है, तुम मेरे लिए आना चाहिए और मैं हमेशा के लिए तेरे साथ में तुम मेरा साथ तुमको रखेगा, ऐसा करके वादा कर रहे हैं। அப்பொழுது ஆகிதை நோக்கி இதற்காக என்னை என்னாலும் எனக்கு மெய்க்காவலனாக வைப்பேன். उस संतति के पहले सामुएल भविष्यवाणी, शाऊल को दाऊद को जो अभिषेक किया था भविष्यवाणी, सामुएल मर गया। इस समाचार के बीच में सामुएल भविष्यवाणी जब मर गया तो शाऊल को और डर आ गया। युद्ध में जाने के पहले प्रभु का प्रकटी करने वाला, भविष्यवाणी बोलने वाला, जो प्रभु से बात करके कहेगा उसका द्वारा इन लोग युद्ध में जीतता था। राजा बोलेगा तो राजा से भी बढ़कर भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी प्रभु का मुंह होता है। भविष्यवाणी बोल दिया तो उस भविष्यवाणी के द्वारा चमत्कार होता है। हमेशा युद्ध करने वाला कौन रहता है? प्रभु ही रहता है। आमीन। प्रभु अपना दास के द्वारा राजा को बताता है। तो इस कार्य में सामुएल भविष्यवाणी गया। शाऊल का प्रभु का संबंध नहीं है, ये थोड़ा मस्ती वाला आदमी है। सामुएल जो है, शाऊल जो है उल्टा उल्टा आदमी है। अभी उसको डर आ गया, मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ। जब भी गोलियात आया था दाऊद आके तुमको मदद के लिए आया था। अभी दाऊद भी नहीं है तेरे साथ, सामुएल भविष्यवाणी भी नहीं है, तेरा अभिषेक भी निकल गया, क्या करा रहेगा। डर आ गया। कभी डर आने से क्या हो जाता है, कोई जादू टोने से वो என்ன சொல்லுவாங்க, अंजना பார்க்குறவர் तीन तीन 28 படம் ஒன்றும் இல்லை 7. அப்பொழுது சவுல் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி அஞ்சனம் பார்க்கிற ஒரு ஸ்திரியை தேடுங்கள், நான் அவளிடத்தில் போய் விசாரிப்பேன் என்றார். அதற்கு அவனுடைய ஊழியக்காரர், இதோ हिंदी में पढ़ेंगे, அஞ்சனம் பார்க்கிற ஒரு ஸ்திரீ இருக்கிறார். तीन तीन पढ़ो। सामुएल तो मर गया था और समस्त इजरायलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने खोजों और बुत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। हालेलुया। गुप्त स्थिति, बुत सिद्धि गुप्त स्त्री करने वालों का देश से हाँ, निकाल दिया था। पूरी चिल्ड्रों कड़े चली थी, अंजना पार्क में चली थी। ஏழாவது அதிகாரத்தில் போட்டுக்கலாம். बुत सिद्धि करने वाला, हाँ, और करने वाले को और कर्म इंदौर में एक बुत सिद्धि नाइलान करे वाला। साथ 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 पढ़ेंगे। तो शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी बुत सिद्धि करने वाली को ढूंढो। कौन सा स्थिति? बुत सिद्धि, बुत सिद्धि, हाँ, हाँ, बुतना हाँ, बुत बुत सिद्धि सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक बुत सिद्धि करने वाली रहती है। बुत स्थिति, बुत सिद्धि 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 बुत स्थिति, सिद्धि भूत का स्थिति, भूत शैतान का चाल से क्रिया करने वाला, प्रकट करने वाला। प्रभु का अभिषेक नहीं तो वो किधर जाता है? जादू टोना वाला। जादू टोने वाला के पास, बुत बुत स्थिति सिद्धि करने बोलने वाला। वाला। एक भविष्यवाणी होता है कल क्या प्रभु होगा, का, आगे क्या होगा। प्रभु का अभिषेक से प्रकट करने वाला भविष्यवाणी भी है, बुत स्थिति का भविष्यवाणी भी है, शैतान का भविष्यवाणी भी है। हम ओरिजिनल नहीं ले पाते तो डुप्लीकेट लेते हैं ना। वैसा ये भाई भी क्या कर रहा है, अभी शामिल भी करे है, अभी अपने पास क्या है, बुत सिद्धि है। बुत स्थिति को देखने वाले को ढूंढ के क्या है। एक समय में वही शाऊल, कोई भी बुत स्थिति वाला इधर रहने नहीं चाहिए, अगर कोई देखेगा खत्म कर देगा, करने वाला आदमी था। इसके लिए बहुत डरता था। लेकिन वो राजा कूदी जाके ढूंढ कर वेशधारी बनकर वेश बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए बागी कहलवा। कभी वो भूत स्थिति तो बोल रहा है मेरा देश का राजा है शाऊल, उसने कहा ये सब देखेगा तो तुम्हारा काट देगा करके, इसलिए हम नहीं करेगा। मैं प्रभु का जीवन से कहता हूँ
तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, तुम देखो। हाँ, क्यों? वही वही आगे देने वाला आदमी एक बदल गया। हालेलुया। मैं सिद्धि दूत से वेरीफाई करता हूँ, और जिसका नाम मैं लूँगा उसे बुलवा देता और भूत क्या करता है? भूत क्या करता है? हूँ। वेश बदल के अपना अपना रूप दिखाता है। ये कैसा राजा होके दूसरा वेश बदल के भेष बदल कर आ रहा है, वैसा शैतान भी क्या करता है? भेष बदल सामने वाला ऐसा है सामुएल को ढूंढ रहा है। हम भी सामुएल के मुफ्त साल बन के आ गए। இதைத்தான் நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். அதாவது ஒரு सामुएल पैसा नहीं आया। ஒரு பிசாசு பிடிச்சவன் வந்து பரிசுத்தவானை எப்படி காமிக்க முடியும்? समझ गया? ये एक राजा होकर कैसा गया? आम आदमी जैसा बन मार गया। के। वैसा वो भूत भी क्या करता है? साधु बनकर आया। अरे यही मेरा सामुएल पैसा नहीं है। Praise God. Hallelujah. அப்படி படித்து கொண்டார். प्रभु प्रभु तुम्हारा आज एक आदमी मिला, समझ मुदल कर जाएंगे, बच्चन में जाएंगे। अभी जैसा हम चाहते हैं वैसा हो आता है। आप बोलेगा मेरे को कोई ऐसा बोलने वाला मिलेगा क्या? एक बेसदरी आएगा, बेसदर वेश बदल कर आया। बेस बदल कर आएगा। बदल आपको ढूंढ कर आया था। मैं कल एक दर्शन देखा था बदल, आपको बहुत बड़ा ये होने वाला है। तुम ताकत करता था ना, आ गया तेरा ताकत पूरा, तुम्हारा गवर्नमेंट मिलने वाला, नौकरी मिलने वाला है। हम भी पूरा दिल खोल कर हाँ ठीक है बात बोलते हैं। क्या करते हैं? झूठा भविष्यवाणी पे हम भरोसा कर देता है। वो देखता है हाँ इसमें उसको चक्कर ज़्यादा चलता है, इसको शादी नहीं हुआ इसको चक्कर दिलाओ, इसको बच्चा नहीं हुआ उसको चक्कर दिलाओ, इसको ऐसा ही लूटेगा लूटेगा लूटेगा, पूरा खत्म हो जाएगा। बाद में बोलेगा तुमने बराबर नहीं कहा, तुमने प्रार्थना नहीं किया था, तुमने काम छोड़ना चाहिए था, संडे को ये करना चाहिए था, तुमने वो अर्पण नहीं किया था। ये सब बता के खा के पी के उल्टा हमें को मार के भी जाए। அந்த கதவு வரும். इसके लिए शैतान से भी ज़्यादा बात नहीं करने का। भविष्यवाणी भी बोलते तो हम सुनने के फर्क के देखने का, वो जो बोला पूरा नहीं सुनने का। बच्चन से संबंध है क्या? बच्चन से संबंध है क्या देखने का। और वो बोलने के समय में हमारे हृदय में आग अग्नि ऐसा उजाला हो रहा है क्या देखने का। ऐसा हम सुन रहे करके चार बात एक तरफ डाल रहे हैं तो हमको तो थोड़ा ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा गड़बड़ आ रहा है तो ये झूठा है। இல்லை இதுக்கு ஒரு நான் காரியம் சொல்லட்டுமா? गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अग्नि होना चाहिए। आजकल बहुत पास्टर लोग ये बेच बदलने वाला का बनकर किधर जाके खड़ा है? अन्य देवता को सामने खड़ा है। हमको बताओ आने वाला दिन क्या रहेगा, कैसा रहेगा। कि उसने देखता है ये पहले एक टाइम में प्रभु से बात करने वाला था, अभी पापों में फंस गया, दुनिया में घुस गया, अभी उसको वो वर्ड नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमको ढूंढ कर आया, हम उसको गुस्सा भर देंगे। प्रभु सृष्टि किया, इंद्रन करके एक पद पिक्चर था ना, छिप अच्छा लगाया। वो शैतान क्या किया, अच्छा कार्य के लिए जो छिप निकाल के रखा था उसको निकाल के दूसरा पूरा छिप लगा दिया, तो कितना खतरनाक हो गया। எந்திரன் எந்திரன் இந்த சிங்காரி படம் एक रोबो बनाया, वो रोबो को युद्ध के लिए कभी आग लग रहा है तो उसका अंदर घुसकर लोगों को बचाने के लिए आर्मी में और डॉक्टर में ऐसा बड़ा बड़ा कार्य को प्रोग्रामिंग बनाया। प्रोग्रामिंग बना के कौन किया था? एक अच्छा साइंटिस्ट किया था। कौन सा काम के लिए? भलाई काम के लिए। और शत्रु ने उसी भलाई को अंदर खोल कर चिप निकाल कर अपना चिप लगा दिया, तो जो उसको साइंटिस्ट ने बनाया है उसकी खत्म कर देता है, उसकी खत्म कर देता है, देश को नाश करने के लिए आ जाता है। आज हमारा देश में जो भी नेता लोग है वेशधारी मतलब बेस बदल कर आता है। मैं चाय वाला हूँ, मैं आपका घर का नौकर हूँ, भाइयों बहनों मित्रों, माता जी हमारा बहन आपको 1500 रुपये डालता है, किसी तरह मेरे को जीतना है। अगर नहीं जीतने तो आने वाला जो सरकार आएगा उसको पैसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा खजाना खाली करना है। अभी उसने दिया तो इसने बंद किया तो ये गरीब आदमी है, ऐसा साबित करके आप 5 साल के बाद भी उसको आने का है।
अभी 5 देने वाला कब देता है? शुरुआत में 5 साल का पहले कुर्सी में जब भी बैठा था देना चाहिए था। अभी 4-5 महीने का पहले MP इलेक्शन में सब लोग ने वोट बदल के डाल दिया। अभी उनका पीछे भी कोई जाने वाला नहीं है बराबर। उसका नाम क्या है? अंद कुत्तोलक उत्तो ताकरे चिन्नது मसाल को बराबर। मतलब इतना इन लोग क्या पागल है क्या? 2 पत्ता को वोट डालने के लिए और ये धनसवान को वोट डालने के लिए। हमको मालूम है तू डुप्लीकेट है, ओरिजिनल मिसाल है करके डाल दिया। अभी उसको जान लिया MP में कोई भी नहीं आया। हमने ये CM भी नहीं बन सकता है, इधर अंदानी अंबानी खरीद नहीं सकता, मुंबई को लूट नहीं सकता है। अभी एक ही रास्ता है, हम लोगों को पैसा बांटना है। 3,000 एक साथ मिल रहा है। अरे देने वाला तो 5 साल का पहले देता था। अभी 2 ही महीना बचा इलेक्शन के लिए। ये 2-3 महीने के अंदर जितना उसको चाल में फंसाना है। कोई के गरीब लोग रहता है, माता बहन लोग ऐसा रहता है, उन लोग क्या करता है? अरे यार 3,000 रुपये मिला यार, 3,000 के लिए तुम वोट देगा, 5 साल तुम क्या कर देगा? जीने के लिए वांदा हो जाएगा। 1000 रुपया। हाँ, उसको बराबर पत्ता लगा के ले लो का वो, और उसके बाद उसको भगा डालो। तुम आटा चलाने के लिए जाओ, तुम इधर लूटने के लिए नहीं आना चाहिए करके भगाना चाहिए। लेकिन चाल चलन से लोगों को बीच में बिगड़ने वाला लोग आ गया है। चाल चलन में हमारा लोग फंस जाता है। अगर वो 0 सीट लेने वाला कोई भी एक जगह पे तो जीत कर आएगा। 10-15 सीट तो कितना कितना जीतने के लिए चांसेस है ना। ये 3,000 4,000 वाला काम करता है। अरे कितना भी होने दो, अपने को 5,000 मिला ना, वही आएगा तो हमको रोज़ मिलेगा ना। हमारा माँ बाप तो 2 हाथ से हार लगाता है, लेकिन वो जैसा मक्खी है ना, मक्खी एक मकड़ी के पास जाकर चाल में फंस गया। हाँ, मकड़ी का जाल कितना 8 पैर रहता है, 8 हाथों से ऐसा प्रेम दिखाए तो आहा। हमारा घर में सब लोग 2-2 हाथ से हमको करता था। इसका कितना बड़ा प्रेम है। थोड़ा प्रेम में गला लगाते लगाते अंदर का पूरा खून निकल जाएगा, बाद में हवा में उड़ेगा। ये दुनिया का प्रेम, दुनिया का चाल को हमारा लोग नहीं पसंद है, नहीं पहचानता है। ऐसा चाल में फंस जाता है। जब हम जाके कदम प्रभु से छोड़कर अन्य क्रिया करने वाला का साथ, हमको भविष्यवाणी सुनने का, भविष्यवाणी सुनने का, भविष्यवाणी सुनने का, भविष्यवाणी जब बोलेगा सुनते रहने का, हम उसका पीछे नहीं भागने का। हाँ, ये भविष्यवाणी बोलने वाला है तो उसके पास 50 लोग जाके प्रार्थना में खड़ा रहता है। क्योंकि ये अभी कभी कुछ भविष्यवाणी नहीं बोला तो भी ये क्या सोचेगा, अगले बार आएगा नहीं करके कुछ भी मुंह से आया बोल देता है। प्रभु का वचन है क्या है? तुम किसकी भी आशीष करो, प्रभु का दास का मुंह से जो निकला हुआ वचन कल ही नहीं जाएगा। कभी कभी क्रिया भी हो जाता है, इसलिए टोक देता है। भाई तुम्हारा लड़का होएगा, लड़की होएगा, ये हो गया हाँ ठीक है मिनिमम। मेरा तो ऐसा है ना, बोलने के लिए क्या होता है, लेकिन बराबर बता के बोलने वाला सही रहता है। हालेलुया। कभी कभी प्रभु आदर करता है, ठीक है मेरा नाम पे ये इसने आशीष दे दिया, उसको भलाई कर दो। प्रभु कहता है मेरे नाम पे, अरे जादू टोने वाला मन करेगा तो भी भूत भागता है। यीशु का नाम में अधिकार है। हालेलुया। लेकिन यीशु का हमारा संबंध है क्या? यीशु के साथ हम जुड़ा है क्या? नहीं है। चाल चलन नहीं है। अग्नि फर्क के देखेगा। दाना भंडार में जाएगा, पदर करने चलोगे, भूसा हवा में उड़ जाएगा। जब तूफान हवा आता है, संकट आता है, तब भी अपनापन दिखा देता है। अंदर वचन नहीं है, इसके लिए लोगों को मारता है। तुम बराबर नहीं है, तुम ये है वो है, ये है वो है। अरे वो बराबर नहीं है करके हॉस्पिटल में आया ना, तुम उसको इलाज करने का काम डॉक्टर का रहता है। डॉक्टर बोलेगा मेरे को पवित्र लुक आना चाहिए, बाकी लुक नहीं आना चाहिए, बीमारी वाला नहीं आना चाहिए, सब एकदम अच्छा वाला सफ़ेद कपड़ा पहन के आएगा तो तुम्हारा ये हॉस्पिटल का है। पिनियाली लगता डॉक्टर बीमारियों को ही इलाज वैद्य की जरूरत है। हाँ, तो पास्टर किसका है? पापियों के लिए, जो कंगाल होकर बैठा है उसके लिए हम सेवा कर रहे हैं, धार्मिकता के लिए नहीं। ये पवित्र छल्ले इधर ऐसा है वैसा है तो वो भाग जाएगा, वो उसको पहले सन दे दो, उसके लिए जगह है। ये बड़ा पास्टर, ये छोटा पास्टर, ये सब तुम बात करेगा तो बाइक के लोग बाहर भाग जाता है। परिवार किधर गया मालूम नहीं। फिर किधर ना किधर एक चोट गया रहेगा, किधर ना किधर एक शब्द बोला रहेगा।
प्राण को खोले खो देता है। पौल बता रहा है हम गर्भ का वेदना उठा रहा है, गर्भ का वेदना। हम सच्चा माता रहेगा तो, सच्चा पिताजी रहेगा तो अपना बच्चे के लिए बेटा कुछ भी होएगा चलो ठीक है मैं माफ़ कर दिया आ जाओ करके पीछे रहेगा। किसी से बात नहीं, किसी से कुछ नहीं, तुम आया तो आए नहीं तो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घर पे भेज दो, क्यों इधर आके बैठा है? ऐसा तुम भगा रहे तो तुम बाप है क्या, माँ है क्या? सच्चा माँ ऐसा बोलेगा? गलत करके बीमार बनकर आएगा तो भी गला लगाएगा। अरे मेरा बेटा आया 5 पैसा भेजा नहीं, गांव में जाके ऐश कर रहा था, अभी सब लोग छोड़ के चला गया, कंगाल होकर आया, तू भी उसका घर में जो भी कंजी रहेगा वो देगा। वो सच्चा माँ पिता होता है। अरे तुम इधर आवाज़ नहीं करने का, तुम दार पे क्या? अरे उसको बोलने देना, उसको चिल्लाने दो, उसको आगे बढ़ने दो, उसके लिए जगह दे दो। उसके लिए हम सेवक बनकर आया, उसका पैर धोने के लिए हमारा सेवा, राज करने के लिए सेवा नहीं है। हालेलुया। हमारा ये अभिषेक पाया हुआ शाऊल राजा पहुंच गया किधर? सामुएल को छोड़ दिया, प्रभु को भी छोड़ दिया, अभी बुद्ध सिद्धि बोलने वाला के पास चला गया। हालेलुया। बाद में वो अरे यार तुम तो राजा हो, उसने देख लिया। उसके बाद आगे क्या आ रहा है? स्त्री ने उससे कहा तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने रोजों और बुत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया, फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों बंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले? 10वां वचन, शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। स्त्री ने पूछा मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा मत डर, मुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा उसका कैसा रूप है? उसने कहा एक बूढ़ा पुरुष भागा उड़े हुए चढ़ा आता है। तब शमूएल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल ही है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। भूमि पर गिर कर दंडवत किया। किसके सामने? शमूएल के सामने, गुप्त स्त्री का सामने। और बुद्ध स्थिति के द्वारा सामुएल का दर्शन को कौन ला सकता है? एक बुद्ध स्थिति करने वाला सामुएल को उठा सकता है? उठा सकता है क्या? इतना बड़ा तांत्रिक है। लेकिन वो स्त्री देख लिया यही शाऊल है करके, जान लिया। हालेलुया। जब बुद्ध भी बता देता है ये कैसा आदमी है, ये कौन है, ये प्रचार कर रहा है, ये कौन है, शैतान को बराबर मालूम है इसके साथ हमारा चाल नहीं चलेगा कर कर। पौल को भी मालूम है, अपोलो को भी मालूम है तुम कौन है। हालेलुया। अगर हम बराबर सावधान नहीं रहेगा तो वो भूत अपने को उल्टा देगा, घुसा देगा पूरा अंदर, दस अंदर घुस जाएगा, बहुत बड़ा संकट आ जाता है। हालेलुया। तो शैतान को जगह मत दे दो, घमंड को जगह मत दे दो, अपनापन को जगह मत दे दो, शरीर को जगह मत दे दो, दुनिया को जगह मत दे दो। जब जब प्रभु का भवन में आता है अपना कुछ नहीं करके नम्रता करो, प्रभु खड़ा कर देगा। थोड़ा भी मैं आएगा तो गया काम पे गया, मैं नहीं, मेरा बल नहीं, उसका अनुग्रह है। अगर उसमें स्थान दे दिया, एक अंदर घुसेगा, 2 घुसेगा, 10 घुसेगा, बाद में अरे वो 500 का ऐसा क्यों बात करता है, ऐसा हो जाता है। आजकल बहुत लोग अच्छा विश्वासी बनकर आया था, बाद में तो अगर वो धंधा छोड़ के आया तो उसका धंधा का दिमाग इधर आ जाता है। पैसा कमाने का, इतना रुपया रोज का मेरा वसूल करने का, कितना ब्याज मिलता है, क्या मिलता है, वो मिलता है, 10 मिनट के बाद जाने का, मेरा आज टारगेट इतना है, वो धंधा करो ना, वो बेचता है। यीशु का नाम पे क्यों है तो भीख मांग रहा है?
मैंने तुमको ये किया, तुम थोड़ा दे। कौन बोला तुमको करने के लिए? तुम सेवक है प्रभु का, तुम्हारा पगार देने वाला प्रभु। तुम किसके पास जाके खड़ा रहता है? मैंने ये किया, वो किया। तुम्हें जो किया उसका प्रतिफल प्रभु दे। हालेलुया। ये जो कार्य है, हम जाने अनजान से अगर कोई किया रहेगा तो मन फिर सकता है, मन फिर सकता है, कबूल कर सकता है। मैं थोड़ा होश में नहीं था, हो गया, गलती हो गया, प्रभु तुरंत माफ देगा। अपना स्थिति में फर्क देखने के लिए कभी कभी प्रभु समय देता है। तो कहाँ वो चक्कर देते, सीधी देखो, किस जगह में गिरा उस जगह में हमको वापस उठकर आने के लिए प्रभु समय देता है। ऐसा आज उस वचन में हम पढ़ते गया, आगे इसने क्या बोला? शाऊल के अपना दाऊद क्या बोला? मैं नहीं आ सकता, मैं उन लोगों के विरोध में नहीं आ सकते, नहीं आ सकता। आया कि नहीं आया? इजराइल का विरोध में दाऊद से जा नहीं पाता है, भले विरोधी है, भले विरोधी है। शाऊल को खून करने वाला था, फिलिस्तीर को मारने वाला था दाऊद, लेकिन मजबूर में उसके पास बैठा है, फिर भी उसका अगेंस्ट में ये नहीं जा पाता। आकीश ने दाऊद को उत्तर देकर कहा, कौन सा बताइए? 29 दाऊद। आकीश ने दाऊद को उत्तर देकर कहा, हाँ यह मुझे मालूम है, तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है। तो भी फलिस्ती हाकिमों ने कहा रे कि वो हमारे संग लड़ाई में न जाने पाएगा। इसलिए अब तू अपने प्रभु के सेवकों को लेकर जो तेरे साथ आए, बिहान को तड़के उठना और तुम बिहान को तड़के उठकर उजियाला होते ही चले जाना। हालेलुया। इसलिए बिहान को दाऊद अपने जानों समेत तड़के उठकर फिलिस्तियों के देश को लौट गया। आगीश ने दाऊद के ऊपर भरोसा करता है, लेकिन उसका जो प्रभु लोग, अरे ये तो हमको एक टाइम में मार के मंगाया था, ये कितना भी होना तो उल्टा मार देगा कभी कभी, इसको साथ में मत लेके जाओ, साथ आगे सामने वाले के पास चले जाए। ये कभी क्या होएगा मालूम नहीं करके इसके बारे में सामने वाला जान के रखा, शत्रु ने जान के रखा, लेकिन अपना मित्र नहीं जान के रखता। हमारा देशवासियों, हमारा प्यारा इस्राएलो, ये हमारा संतान है, ये हमारा खून है, ये हमारा प्रभु का बच्चा है, और नहीं जान पा रहा है, लेकिन शत्रु शैतान जान के रखा। हालेलुया। प्रभु को स्तुति हो। आज ये वचन मिल रहा नहीं। हालेलुया। तू वापस जा रहा है दाऊद, तब तक उधर लूट के गया। कौन आके लूट के गया? 30 में पहले पढ़ेंगे। ये बेचारा ना घर का ना घाट का हो रहा है, इधर भी नहीं लड़ पाता। हाँ, पुलिस छोड़ के हम लेकर आ गया, हम लेकर क्या गया? अभी दाऊद आगे इसका साथ घूम रहा है, अपना स्थान छोड़ के उधर घूम रहा है। दाऊद का बीबी बाव बच्चा है, उसका जो भी धन दौलत है खाली है। दाऊद जब भी खाली रखा था, तभी अमीलेक आके पीछे से पूरा वार करके, एक भी बच्चा को जोड़ा नहीं, बीबी की जोड़ा नहीं, सबको क्या किया? बंदीग्राम करके लेके चला गया। अपना 600 जवान को लेके दाऊद आ रहा है, अपना बीबी नहीं, बच्चा नहीं, कुछ नहीं, सब लोग रो रहा है, अरे मेरा बाल नहीं, मेरा बच्चा नहीं, तेरे साथ मिलकर ये हो गया। इतना दिन इसके साथ मिलकर खाया था, पिया था, जी रहा था, तभी दाऊद राजा नहीं, हमारा लीडर बोलता था। अभी वही लोग 600 लोग मिलके इसको पत्थर मारने के लिए सोचता है, दाऊद भी खत्म करने के लिए। खुद का सागा जिसको खिलाया पिलाया था, जिसके लिए मरता था जान लगा के, वही लोग उसको पत्थर लेके खड़ा है इसको खत्म करने के लिए। दाऊद मन बहुत के साथ प्रभु को मैं क्या करूं, मैं उसका पीछा करूं, अगले को पीछा करूं क्या, किधर गया मालूम नहीं, ढूंढ के जाऊं क्या, तो पीछा कर रहा है। उस हमले का एक सेना का एक व्यक्ति लंगड़ा था, मतलब थोड़ा तकलीफ, तबीयत ठीक नहीं था, इसके लिए वो मर जाएगा करके उसको छोड़ के गया। उस रास्ता में 600 में 300 लोग निकला ही नहीं, कितना नहीं, 200 लोग निकला नहीं, 400 लोग भाग रहा है।
भाग रहे हैं उसमें आधा रास्ते में अभी क्या जाएगा, मेरा बीवी भी नहीं मिलेगा, मेरा कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा लड़के मरने से अच्छा वो जाके मरने दो कर 200 लोग पीछे लग गए, आधा रास्ते में रुक गया। बाद में और 200 लोग लग के भाग रहे हैं दाऊद। उसमें एक व्यक्ति जो मरने वाला स्थिति था उसको छोड़ के गया था, उसको उठाया, उसको अत्ती का कुछ पत्ता कुछ खिला के उसको तबीयत ठीक कर दिया। उसको पूछा मैं तुमको कुछ नहीं करेगा, उन लोग कौन सा रास्ता में जा रहा करके पूछा, उसने बताया ये रास्ता में, तो उसको पीछा धुलाई ऐसा ही किया, 2 गुना लूट कर आ गया। लूट के आने के समय में वो 200 लोग आ रहा है, जो आधा में रुक गया उसकी भी सेम बात, जो निकला ही नहीं है उसकी भी सेम बात, जितना भी लूटा सब वापस दिया, एक भी कोया नहीं, बीबी या बच्चा किसी को भी कोया नहीं, पूरा धन दौलत लूट के उसका भी लूट कर आ गया। हाँ हालेलुया। उसके बाद उस दाऊद ने 30 अध्याय खत्म होने के बाद सीधा 2 सामुएल पहले में आ जाता है, समस्त इस्राएल को राजा बन गया। 30 नहीं, पहले दूसरा सामुएल पहले में। சவுல் மரித்த பின்பு தாவீது அமலேக்கியரை முறியடித்து अमीलेक को खत्म कर दिया। சிக்லாகுக்கு திரும்பி வந்து हाँ। 2 நாள் அங்கே இருந்த 2 दिन खाली रहता था। हाँ 3ஆம் நாளிலே ஒரு மனுஷன் சவுலின் பாளையத்திலிருந்து புறப்பட்டு தன் வஸ்திரங்களை கிழித்துக் கொண்டு தன் தலையின் மேல் புழுதியை போட்டுக்கொண்டு தாவீதினிடத்தில் வந்து தரையிலே விழுந்து வணங்கினான். தாவீது அவனை பார்த்து நீ எங்கே இருந்து வருகிறாய் என்று கேட்டதற்கு அவன் இஸ்ரவேலின் பாளையத்திலிருந்து தப்பி வந்தேன் என்றான். தாவீது அவனை பார்த்து நடந்த செய்தி என்ன சொல் என்று கேட்டதற்கு அவன் ஜனங்கள் யுத்தத்தை விட்டு புரிந்தோடினார்கள், ஜனங்கள் அநேகர் பேர் விழுந்து படிந்து போனார்கள், சவுலும் அவன் குமாரனாகிய யோனத்தானும் அடிந்தார்கள் என்றான். சவுலும் அவன் குமாரனாகிய யோனத்தானும் அடித்து போனது உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று தாவீது தனக்கு அதை அறிவிக்கிற வாலிபனிடத்தில் கேட்டதற்கு அந்த வாலிபன் நான் தற்செயலாக கில்போவா மலைக்கு போனேன், அப்பொழுது இதோ சவுல் தம்முடைய ஈட்டியின் மேல் சாய்ந்து கொண்டிருந்தார், ரதங்களும் குதிரை வீரரும் அவரை தொடர்ந்து நெருக்கினார்கள். அவர் திரும்பி பார்த்து என்னை கண்டு கூப்பிட்டார். அதற்கு நான் இதோ இருக்கிறேன் என்றேன். அப்பொழுது அவர் நீ யார் என்று என்னை கேட்டார். நான் அமலேக்கியன் என்று சொன்னேன். அவர் என்னை நோக்கி நீ என்னிடையே கிட்ட வந்து நின்று என்னை கொன்று போடு, என் பிராணன் முழுவதும் இன்று போகாதிருந்ததனால் எனக்கு வேதனையாக இருக்கிறது என்றார். அப்பொழுது நான் அவர் விழுந்த பின்பு பிழைக்க மாட்டார் என்று நிச்சயித்து அவர் அண்டையில் போய் நின்று அவர் கொண்டு போட்டேன். பிற்பாடு அவர் தலையின் மேல் இருந்த முடியையும் அவர் உயர்த்தில் இருந்த அஸ்தகடத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு அவைகளை இங்கே என் ஆண்டவருக்கு கொண்டு வந்தேன் என்றார். அப்பொழுது தாவீது அவனோடு இருந்த சகல மனுஷரும் தங்கள் வஸ்திரங்களை கிழித்துக் கொண்டு சவுலும் அவன் குமாரனாகிய யோனத்தானும் தங்களுடைய ஜனங்களும் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரும் பட்டயத்தின் மேல் விழுந்தபடியினால் உழம்பி அழுந்து சாயங்காலம் மட்டும் உபவாசமாயிருந்தார்கள். தாவீது அதை தனக்கு அறிவித்த வாலிபனை பார்த்து நீ எவ்விடத்தான் என்று கேட்டதற்கு அவன் அந்த அந்நிய ஜாதியினுடைய மகன் நான் அமலேக்கியன் என்றான். தாவீது அவன் நோக்கி கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணினவரை கொண்டு போடும்படி நீ உன் கையை நீட்ட படாமல் போனது என்ன? दाऊद का अंदर कितना जलन देखो। என்று சொல்லி दाऊद को जाके बता रहा तुम्हारा दुश्मन साउल मर गया, ऐसे करके बोला हुआ अमलेक। उसने वेदना के साथ सुसाइड करने के लिए गया, सुसाइड में मरा नहीं है, ये बालू को लग के उसके अंदर गिरा, तो भी झड़प रहा लेकिन मर रहा नहीं है। अमलेक को जाके बोल रहे अरे मेरे को थोड़ा मदद करो, मेरे को ख़त्म करो को, मेरे को बहुत सहन नहीं पा रहा है, वेदना हो रहा करके साउल राजा बोल रहा है। तो उसने उसको ख़त्म कर दिया। तो दाऊद पूछ रहा है तुम कौन है? मैं अमलेक है। अमलेक होकर अभिषेक किया हुआ राजा को तुम ख़त्म करके कौन है? उसने डाल दिया। मतलब हमारा दुश्मन अभिषेक किया हुआ व्यक्ति राजा था, भले दुश्मन है फिर भी कितना प्रेम था दाऊद के अंदर। हालेलुया। वो सामुएल भविष्यवाणी की भी आदत देता था और जो सेवक है उसकी भी बहुत बड़ा प्रेम रखा था। लेकिन कभी कभी कोई सेवक लोग अपना लड़का कर प्रेम नहीं है, उसको मारने के लिए जाता है, उसको पीछा करता है, फिर भी उसके लिए जी जान से खड़ा है। इसलिए दाऊद भी गया, अपना सामुएल भी मर गया, उसका लड़का दाऊद का दोस्त था, उसका नाम क्या है? योनातान। वो भी गया, तो दाऊद ने क्या किया उसका लड़का को भी ले लिया साथ में, और उस पूरा इस्राएल को, समस्त इस्राएल को राजा बन गया। जब प्रभु ने अभिषेक किया, राजा का अभिषेक, प्रभु का अभिषेक उसको खड़ा किया, लेकिन अमलेक होने दो, कोई भी होने दो, कमज़ोर व्यक्ति के साथ छोटा भीड़ लेके जाने दो, ख़त्म कर देगा। अगर तुम्हारा अंदर सच्चा अभिषेक है, बुलावट है, तुमको कोई नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा भीड़ 600 लोग रहेगा, कमज़ोर व्यक्ति रहेगा, तो भी तुम लूट देगा उसको, 2 गुना लूट के आएगा।
कितना भी बड़ा सेना आना तो तुम्हारे सामने नहीं खड़ा हो सकता है। लेकिन दाऊद ने ये समझ लिया इस लोग का साथ में हम खड़ा रहेगा तो राजा बोलेगा, लीडर बोलेगा, बाद में कभी एक दिन नुकसान होएगा तो पत्थर से मारने के लिए रहेगा। इसको किधर खड़ा करने को उधर खड़ा किया। बाद में उसको मिलने के लिए ऐसा आसान से उसके साथ लेट नहीं सकता था, उसको स्थान दिखाया, ये जगह ये समस्त इस्राएल को राजा हो गया। जैसा योसेफ ने उसका खुद का परिवार वाला उसके गड्ढे में डाल दिया। हाँ, ये एकदम बड़ा व्यक्ति बनकर एक में बैठा है, प्रथमर बन के बैठा है, लेकिन राजा जिंदाबाद करके नमस्कार करने के टाइम में ये अपना दिल खोल के अरे मेरा भाई लोग करके बोला था। भाई बोल सुनने के बाद उन लोग को डर आ गया, अरे हम तो इसको खून करने के चक्कर में इसको वस्त्र निकाल दिया था, गड्ढा में डाल दिया था, मिस्र देश में भेज दिया था, मेरे को खून मत करो, मेरा बच्चे लोग को सब जिंदा कर दो, जिंदा छोड़ दो कर माफ़ मांग रहा था। मैं तुमको कुछ नहीं बुरा करेगा, मैं तुमको और तुम्हारा संतान को खाना खिलाएगा, तुमको सुरक्षा देगा करके बोला, लेकिन अपना महफिल में नहीं बिठाया। जिधर दिखाने का चप्पल भी किधर डालने का उधर दिखाया। तुम बड़े मेरे को कितना भी होने दो, तो चप्पल रखने की जगह पर रखना चाहिए। हालेलुया। ये मेरा एकदम जो स्थान में रखना चाहिए था उस स्थान में हमारा नौकर होने तो कोई भी रखा नहीं, तो वो अपने दिल के ऊपर जा जाता, नाचने लगता, कभी मार खाता तो मालूम पड़ता है। उसके बाद प्रेम मोहब्बत दिखाने गया, लेकिन तेरा रास्ता उधर, तेरा कुर्ती उधर, राजा राजा ही, अभिषेक पाया व्यक्ति राजा ही। हालेलुया। फिर भी सिकलग में गया, 2 दिन रहा। अरे यार मेरा मित्र ऐसा करके बाद में लाडला बोलेगा, अरे तुम तो वापस 2 गुना लेके आ गया भाई करके, कितना भी तारीफ करने दो, लेकिन हमेशा के लिए इन लोग सही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इस जगह में हमको सीखने के लिए क्या मिल रहा है? भले बुरा किया तो भी उसका अंदर प्रेम था। ऐसा हमें साथ दे रहा है, उस देश में हम जी रहे हैं, खा पी के रह रहे हैं, फिर भी उसका विरोध में युद्ध के लिए दिल नहीं चाहता है, लेकिन हम जा रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमको भरोसा नहीं कर रहा है। क्यों? ये तो खतरनाक आदमी है, उसका बच्चे लोग को छोड़ेगा तो। जैसा मूसा ने महल में जी रहा था, इब्राहिम का इजिप्ट देश में, मिस्र देश में छोटा बचपन से महल में जी रहा था, लेकिन उस स्थान पकड़ के मेरे को ऐसा ही कंफर्टेबल जोन में बैठने की इच्छा नहीं था। अरे मेरा लोग गुलामी में है, मेरा लोग को इस हम डाल के यार मूसा का मूसे फिरौन का सेना मारता है अपना लोग को, तो कैसा हमारा लोग को मारता है? हमारा भाई अगर कर आया तो 2 दिन का काट दिया जलन होकर। हाथ में यार ये फिरौन को मालूम पड़ेगा तो हमको खत्म कर देगा। हमको जवानी तक बनाया उसने, लेकिन मैं प्रेम उसको नहीं दिखा रहा है, राजा का पुत्र करके नहीं दिखा रहा है, राजा का बेटी का लड़का करके नहीं दिखा रहा है। उसको जान लिया मैं किधर का है, मैं कौन सा संतान का है, मेरा कौन सा खून है, जान लिया। उसके ऊपर तरस आया, उसके ऊपर प्रेम आया। बाद में 40 साल भेड़ बकरी चलाया, लेकिन प्रभु वो जलन को देखा, ये तू ही इस्राएल लोग को संभाल सकता है। उन लोगों पर तुम्हारा ऊपर प्रेम था, तुमने अपने जान को भी खतरा को नहीं समझा, भेड़ बकरी चलाने के लिए भी आ गया, लेकिन तुम उसके लिए जलन होकर खड़ा हुआ था ना। भले तुम गूंगा है, बोल नहीं पा रहा है, कुछ भी होने दो, उम्र हो गया 80 उम्र, फिर भी तू ही इस्राएल लोग को संभालना है, तू ही लीडर करके प्रभु ने चुन लिया। प्रभु लीडर करके कभी चुनता है? ऐसे संघर्ष के समय जी जान से खड़ा रहना चाहिए। प्रभु हमारा हृदय को देखता है कि इधर मिलेगा तो पगार इतना मिलेगा, वो सेवा में जाएगा तो इतना पगार मिलेगा, इधर थोड़ा कंफर्टेबल रह सकता है, इधर कोई भूत भूत आएगा नहीं, अच्छा खा पी के बिरयानी खा के रह सकता है। ऐसा सेवक नहीं ढूंढा, उतर कर जी जहाँ से छाती खोलकर खड़ा हो गया, ले लोया, वैसा वैसा पोस्ट मिलता है। गोलियत का सामने खड़ा रहता तो पूरा इसराइल का वही राजा है। इतना बड़ा एग्जाम परीक्षा में हम भाग ले रहे हैं, उतना बड़ा अधिपति। हम 10 लोग में जीता तो 10 का अधिपति, 100 लोग में जीता तो 100 का अधिपति। हजार भीड़ का अंदर परेशानी के बीच में, संकट के बीच में, परिवार के बीच में प्रभु के लिए चीज जहाँ से खड़ा रहने के लिए जो सोचता है, ये व्यक्ति जीत गया तो बड़ा प्रमोशन, बेदारी ऐसा होएगा, आशीष होएगा, वो उसको इतना बड़ा कलिसिया देगा, इतना बड़ा संतान देगा, पूरा पीड़ित आशीष रहेगा। कोई लोग इतना नहीं चाहता है अपने कलिसिया में जाने का, कोई क्यों आया करके पूछना नहीं चाहिए, आज डालने का, आने का, जाने का, ऐसा नहीं। कितना भी संकट के बीच में भी
हमारा टारगेट लक्ष्य एक होना चाहिए, हमारा दुश्मन एक ही है। मनुष्य के साथ लड़ कर क्या करने का, ये हमारा विरोधी थोड़ी है, ये हमारा विरोधी थोड़ी नहीं, हमारा शत्रु एक ही है। वो किसके अंदर से भी क्रिया करता है। हम इससे प्रेम करने के लिए और उस शत्रु को हम मारना चाहिए, इसलिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, प्रभु को स्तुति हो, आमीन। ये वचन तो बहुत गहराई में गया आदमी में। हालेलुया, आमीन। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ कि नाम प्रभु है साधु करना, सेवा पूरी करके पाऊँ कि नाम प्रभु है साधु करना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं राजा, Thank इस you, सच्चे सुंदर शाम के समय प्रभु रात के समय आपके चरणों में आने की सहायता कर दिया। कोटि कोटि लाखों धन्यवाद देते राजा, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठा होकर प्रभु जो मुझे पुकारेगा मैं उसके बीच में रहूंगा करके कहा परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में मंडला रहा, प्रभु धन्यवाद करते रहा, धन्यवाद देते राजा, आराधना करने के लिए सहायता किया प्रभु राजा, धन्यवाद देते राजा, स्तुति प्रभु। वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे वादे किया प्रभु राजा, प्रभु दाऊद के समान प्रभु राजा, कुछ भी संकट के समय में प्रभु वो आपके ऊपर भरोसे में रहकर राजा, वो आपके वचन के ऊपर प्रभु चलने के लिए उसने अनुग्रह प्रभु राजा, उसने निर्णय लेके प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए सहायता किया प्रभु। वैसे हमें भी प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखे राजा, आगे बढ़ने के लिए राजा, हर दिन हम आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह सहायता मदद कीजिए राजा। हम प्रार्थना करते राजा, विशेष करके राजा कल के होने वाला आराधना के लिए हम प्रार्थना करते राजा। आज सारे जगह पे भी जितने जिधर कलीसिया विश्व भर में होने वाला कलीसिया का आराधना के आपका आदर सौंपता राजा। पवित्र आत्मा आप ही बीच में मध्य में रह के प्रभु का कीजिए राजा। मनुष्य की क्रिया यहाँ पर प्रकट नहीं होना चाहिए राजा, हम प्रार्थना करते राजा। सेवक लोग आपका आदर सौंपता परमेश्वर, सारे सेवकों को प्रभु राजा प्रभु छुपा कर राजा, गुलाम के छुपा कर प्रभु आप प्रकट हो जाइए राजा। वचन बातें करने वाले तुम नहीं बल्कि पवित्र आत्मा करके कहा, पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में रहकर महान काम कीजिए राजा। प्रभु धन्यवाद देते राजा, स्तुति है प्रभु राजा। प्रभु हमारे भाई हमारे जितने भी लाए यहाँ पर आए सभी लोग के परिवार को भी आपके हाथ में सुनता राजा, आपके पंखों के तले में छुपा लीजिए राजा। इस रात के समय प्रभु राजा आपके पवित्र लहू को प्रभु राजा छिड़क के प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद देते राजा। कलीसिया के लिए प्रार्थना करता राजा, आपके पंखों के तले छिपा लीजिए राजा। यहाँ पर आने वाले विश्वासी भाई बहन परिवार को भी आपके हाथ में सौंपता हूं राजा। जो नहीं आ रहा है उन्हें भी लेके आइए राजा, धन्यवाद देते राजा। स्तुति यहाँ से जा रहे हैं, अभी आपकी प्रशंसा आपके उपस्थित हमारे आगे चलने के लिए अनुग्रह सहायता विनती करता हूं राजा। सारे आदर गौरव महिमा आपको देते हैं।
छोटी सी प्रार्थना शुरू हम समाप्त शुरुआत से आमेन आमेन आमेन। प्रभु हमारे प्रार्थना सुनकर महान काम के लिए धन्यवाद करेंगे। ये मेरे मन को धन्य कर जो कुछ भी है नाम आमेन हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति। जिसका अर्जेंट है वो जा सकता है। बाकी लोग नाளைக்கு